So I believe most of the participants joined the session and we can start the program here. So let me tell you that today is the third session of this Human Rights Certificate program. And today we have Ms. Hina Parveen as a speaker who is going to speak over a particular topic. So first of all, let me introduce Ms. Hina ma'am. Hina ma'am is working as an assistant professor at School of Law, GD Goenka University. And apart from this, she is also having a 4-year experience of teaching in different law fields as like international humanitarian law, public international law, family laws, and labor law. She is also doing her PhD from National University of Judicial Science, Kolkata, and before joining GDGU, she worked as an assistant professor at Symbiosis Law School, Hyderabad. She also completed her LLM in international law from National University of Judicial Science, Kolkata, and her BLLB from Aligarh Muslim University, Uttar Pradesh. She also completed her UGC NET. She is also qualified a UGC NET law exam in 2029 and published various papers in national and international journals and also attended various national and international workshops. Apart from that, she was my classmate, and we all both have completed our BLB from the same university, that is Aligarh Muslim University. So it is my honor to welcome you, ma'am, on this platform to speak over a particular topic and to enhance the knowledge of our participants. Thank you for joining, ma'am. It is stage is over to you. Thank you so much, Kashif, for this wonderful introduction. I am humbled by your introduction. Uh, we'll wait for 2 minutes, okay? There's a lot of background noise. I am just waiting for. Give me Yes, one yes, minute. yes. Huh? Just let me. Yeah, sure. Just let me mute other people Yeah. so that we can start. So I request every participant to mute themselves, and if it is possible, please open your camera so that we can have an interactive session with ma'am. And if you have any kind of query, any kind of question, you can ask between the session or at the end of the session when we will give you a question answer round. Okay. Okay, ma'am. So I believe most of them Yes. have joined, so you can start. All right. Thank you. Please let me know if I'm audible and visible clearly. I'm audible. Yes, ma'am. All right. We'll start. I will present my screen. Let me know if it is visible to all of you. Is it visible to everyone? Yes, Is it fine? Should I yes, move ma'am. forward? Yes, it is visible. All right. So today Yes, yes. we will be discussing about exploring the rights to privacy, work, and education in India. I believe these three are the most basic tenets of uh, the fundamental rights which are given in the constitution. राइट टू प्राइवेसी वर्क एजुकेशन तीन इतने महत्वपूर्ण हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से मिला है और ये सिर्फ संविधान की बात नहीं है ये हमारे जो राइट टू प्राइवेसी वर्क और एजुकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक लेजिस्लेटिव मैंडेट नहीं है ये दिस हैज ग्लूम्ड एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड एंड इसके अलग अलग तरीके के मायने निकल के आए हैं बाय जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशरी ने अपने डिसीजन के थ्रू कई तरीके से इन सारे जो हमारे राइट्स हैं उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जुडिशरी ने कई बार इन सारी चीजों को देखते हुए सारे डेफिनेशंस को देखते हुए सारे राइट्स को देखते हुए उनके सारे जो इन सारे राइट्स को देखते हुए इसको इंटरप्रेट किया है नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स थ्री थिंग्स ये तीन जो हमारे राइट्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू प्राइवेसी वर्क एंड एजुकेशन
ये एक्चुअली हमें क्या डिफाइन करता है, क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग इससे? पहले राइट टू प्राइवेसी किसकी बात करता है? हमारे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात करता है। राइट टू वर्क किसकी बात करता है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करता है। राइट टू एजुकेशन किसकी बात करता है? सोशल इंक्लूजन की बात करता है। हमारा राइट टू प्राइवेसी, जो कि इट्स नॉट अ एक्सप्लिसिट राइट विच इज देयर in the Constitution of India, but it is an extended right which is given under Article 21. आर्टिकल 21 एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। उसका इंटरप्रिटेशन करने के बाद और उसका इंटरप्रिटेशन करते करते जुडिशरी ने कई सारे कुछ बेसिक राइट्स को अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड किया है, कई डिफरेंट बहुत सारे दूसरे केस के माध्यम से। Now we need to understand three rights, three interpretations. Right to privacy, individual autonomy. What do you mean by individual autonomy? यानी कि हमें हमारा जो लाइफ है वो प्राइवेट रखने का पूरा हक है। दूसरा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि जो हमारा राइट टू वर्क है उससे एसोसिएटेड बहुत सारे राइट्स हैं। यानी कि अगर हमें लेजिस्लेशन यानी कि लेजिस्लेचर ने अगर हमें राइट टू वर्क दिया है तो उसके साथ साथ दिया है द प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। It addresses the inequalities and it fosters the inclusive growth. What exactly it is? हमारा जो कंट्री है, पहले क्या हुआ करता था कि पहले एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंच में, इट्स अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लाइसेंस फेयर, वेयर देयर इज अ मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। पहले लोगों के अफेयर्स में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था, स्पेशली द मार्केट। इसको हम लोग फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब अभी 1947 में जब हमें आजादी मिली, 1950 में जब संविधान आया, तो वी शिफ्टेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंस फेयर टू वेलफेयर स्टेट। जब वेलफेयर स्टेट आया तो वी स्टार्टेड, तब हमारा एक और सब्जेक्ट का ग्रोथ हुआ। क्या सब्जेक्ट? उसको हम आज कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू क्या होता है बेसिकली? उसके थ्रू ये होता है कि सरकार अपनी डिफरेंट एजेंसीज क्रिएट करती है और स्पेसिफिक एरियाज को गवर्न करने की कोशिश करती है। नाउ सिर्फ वर्क, राइट टू वर्क डजंट डिफाइन एवरीथिंग इन इट्स ओन, सो वी विल हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नुआंसेस ऑफ राइट ऑफ वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू एजुकेशन, ये क्या बताता है? ये बताता है इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, कि सबको शिक्षा मिले, चाहे उनका कोई भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो या उनका क्या जेंडर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और जेंडर, राइट टू एजुकेशन हैज बीन गिवन टू एवरीबडी। क्या सिर्फ राइट टू एजुकेशन लिख देना काफी है? नहीं, एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आया इस राइट टू एजुकेशन को प्रैक्टिस में लाने के लिए। क्या? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसका सबसे बड़ा मकसद क्या था? टू ब्रिज educational disparities, to promote literacy and empower the future generations. So we all know that young minds are the pool of future. So this is, ये जो education, right to education हमारा जो सबसे बड़ा, सबसे मुझे लगता है कि this is one of the most strongest fundamental right which has been given to all of us. ये सिर्फ हमें नहीं, जो existing generation है सिर्फ उसको नहीं, जो हमारा future generation है उसके लिए भी बहुत empowering होगा और वो contribute करेगा इस nation के development में। तो हम लोग अब इसको आगे मैंने इस पूरे जो हमारा लेक्चर है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि अभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तीनों राइट्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखेंगे। द राइट टू प्राइवेसी, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके क्या चैलेंजेस हैं, राइट टू वर्क इंडिया में कैसे फंक्शन करता है, राइट टू वर्क इंडिया में अगर फंक्शन कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या लॉज हैं, हमारे कंट्री में राइट टू एजुकेशन कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास क्या क्या लेजिस्लेशन है। अब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को हम लोग लेजिस्लेटिव यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के साथ कंपेयर करके देखेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन सारी राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट्स होना अपने आप में काफी नहीं है, राइट्स को इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। सो उसके ऊपर हमारे क्या केस लॉज हैं वो सारी चीजें हम लोग देखते चलेंगे। ऑलराइट, सो फंडामेंटल राइट आज का एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राइट टू फंडामेंटल, आई मीन द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट न्यू टू दिस प्रेजेंट सोसाइटी। ये बहुत पुराना है, कब से चलता चला आ रहा है। I mean, I'm not taking into consideration the religious texts. Right now, I'm talking about the Western concept.
सो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट था वो था बेबीलोनियन हम्मुराबीज कोड। उसके बाद हमारा आया मैग्ना कार्टा। उसके बाद फिर रीजनली सारे फंडामेंटल राइट्स को या ह्यूमन राइट्स को अपने अपने तरीके से डेवलप किया गया। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में राइट टू प्राइवेसी, वर्क और एजुकेशन एक फाउंडेशनल पिलर है, जो कि हमारे यहाँ हमारी सारी चीजों को स्ट्रेंथन करता है। चाहे ये तीन जो राइट्स हैं ये तीन तरीके से फंक्शन करता है। राइट टू प्राइवेसी, इट टॉक्स अबाउट माय प्राइवेट लाइफ। राइट टू वर्क, हम अपने प्राइवेट लाइफ को कैसे लीड करेंगे, उससे क्या अचीवमेंट मिलेगा, वो हमारा राइट टू वर्क डिपेंड करता है। और ये जो राइट टू वर्क है उसका वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है एजुकेशन। पहले राइट टू प्राइवेसी एक, पहले क्या अब भी नहीं है, वैसे तो एक्सप्लिसिट राइट नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने एक टर्म यूज किया जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जब आई मीन हमारे यहाँ लॉ नहीं होने के बावजूद जुडिशरी एक स्टेप उठाती है जहां पे कई केसेस से उनको पता चलता है कि अब ये सोसाइटी में एक नया राइट लाने का टाइम आ गया है। जैसे कि हमारे साथ हुआ 2017 में, which was case Puttaswamy versus Union of India, which was one of the most iconic judgment and a landmark judgment, which crystallized the right to privacy। और ये सारी चीजों को गारंटी करते हुए आगे चलते हैं। ये कैसे हुआ? सबसे पहले हम लोगों ने देखा एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेसी का, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा में सबसे पहले जुडिशरी ने डिस्कस किया। लेकिन ठीक उसके बाद एक दूसरा केस आया, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ somebody remind me if anyone is state of UP, I believe. State of Punjab. No, state of UP, I believe. All right, we'll have a look. We'll have a look. Khalak Singh versus state of UP or Punjab. Please go back home and ensure the other party. As far as I remember, it is Khalak Singh versus state of UP, which is a case of 1962, जहां पे जुडिशरी ने अपने एक इनिशियल ग्राउंड वर्क किया, where the judiciary realized that recognizing privacy is an inherent facet of personal liberty. आर्टिकल 21 किस चीज की बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये पर्सनल लिबर्टी है क्या? निजी आजादी। ये निजी आजादी हमको मिलेगी कैसे? ये निजी आजादी, निजी का मतलब ही होता है प्राइवेट। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये उसके दूसरों को मतलब नहीं होना चाहिए। तो लेकिन खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये रियलाइज किया गया कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम वी हैव टू बैलेंस इट विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब अगर हमारे पास पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करें प्राइवेटली कि वो स्टेट के लिए एक थ्रेट बन जाए। पोस्ट इंडिपेंडेंट अगर लेजिस्लेशन को देखा जाए तो हमारे साथ आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। लुकिंग इनटू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होने लगे, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइवेट लाइफ था उसमें बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट होने लगा। ठीक है, लेकिन ये जो आईटी एक्ट था ये कहीं ना कहीं हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है या फिर टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट है या डेवलपमेंट है उसको प्रोग्रेस करने की हम लोग कोशिश करने लगे ना। लेकिन अब देखा जाए तो आईटी एक्ट क्या कंप्लीट था? कोई भी लॉ कभी भी कंप्लीट हो नहीं सकता, क्योंकि लेजिस्लेचर कभी भी हर चीज पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकता। लेजिस्लेचर एक लॉ लेके आता है तभी उसका क्रिटिसिज्म होता है। उसका एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप था जो कि बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट था, बहुत सारे प्राइवेसी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, और जो हमारा डिजिटल लैंडस्केप है उसको एड्रेस करने। If I am not wrong, somebody has raised for a question. Is anybody having a question? Please unmute your mic. Stop me in the between. All right. And I would request Kashif sir to please have a look. If anybody is Yes, having ma'am. Yes, ma'am. I will take care of please that. let me know. All right. Sometime by mistake, people raise their hand. No, I can see intentionally Aziz Khan has Yeah. raised. Yeah, Please Aziz Khan, unmute your you mic have- and you can ask. जी जी मैडम, अगर स्टेट आपकी प्राइवेसी का ख्याल न रखे ना तो आप किस तरह इसका दिफा करेंगे? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज रेस हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा पर्सनल
डिजिटल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या था 2017 के केस में, यानी कि जो हमारा केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि अगर हमारे आधार लिए जा रहे हैं तो वो किस हद तक सेफ है। लेकिन अब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है कि अब हमारे पास एक तरीका है कि अपने आधार को मास्क कर सके, टेक्निक, आई मीन ऑन दिस ऑन इंटरनेट ऑल्सो. So we need to make ourselves aware. You cannot expect the government to pay heed to all the individual requirements. There are two things that we need to understand. We have personal autonomy and there is a state. State cannot look, and I mean, living in this country, I don't know how appropriate it would be to say this in front of all of you, but it is your personal responsibility. Be aware of all the technological advancement. Be sure of all the security that you can bring on the table. I mean, मुझे इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हुए लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, और राइट टू प्राइवेसी पढ़ाते पढ़ाते 2 साल होने जा रहे हैं, और ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका कोई सॉलिड स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में कोई आंसर नहीं दे सकता। सरकार का काम है, स्टेट का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, बट येट आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि स्टेट हैज फेल्ड टू सेव आवर। हाँ, कई जगह पे बहुत सारे लूप होल्स रहे हैं, but completely it is not only state's responsibility, but I believe it is a reciprocal and a mutual responsibility from both us ends. Yes, Indian government has come out with Privacy Act. It is under the table, and soon it will become the act. And we have a Digital Personal Protection Act recently in 2023, which has been passed, and now it has been implemented. So this is also talking about the right to privacy, and specifically right to privacy, particularly digital privacy. Indian government is going and thinking about all these things, and they are coming out with the perfect legislation regarding the Digital Privacy Act. Thank you, sir. All right. Thank you so much for your input. But I would also like to bring this in everybody's notice. And no matter how many legislation you can bring on the table, the pace with which the technological advancement is going on, we cannot control it. We cannot. It is our personal awareness. It is our personal, I mean, how determined are you to protect your data depends on you. So you have to make yourself aware. If, for example, there has been a lot of debate discussing, is AI going to overthrow the faculties? Is AI going to overthrow the what do you say, the intelligence of people? No, it is not. You should be aware how to use AI, but you should not be completely dependent on AI. If you ask me, how many AI tools do you know? Maybe hundreds. I can tell you hundreds of AI tools which can help you write a paper in an hour. I mean, अब जो पेपर लिखने के लिए हमें महीनों रिसर्च करना पड़ता था, वो हम रिसर्च 1 घंटे में कर सकते हैं. But at the end of the day, what is conducive for us? Are we losing that kind of mindset? We do not have to depend completely on one body, either be a state, either be the other institutions for that matter. Subsequently हो सकता है कि कई ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज बनाए जाएं जो कि स्पेसिफिक मैटर्स को देखेंगे, लेकिन ये तो आगे की बात है. बट I am reiterating the same line which I've quoted few minutes back. No matter how many legislations can you bring, you are not going to tame the technological advancement which is happening in the world right now. And we do not know कि ये कहाँ जाके रुकेगा. In every law, one or the other loophole will be found. So we cannot perfectly say that whatever considerations, whatever bill, whatever this or that can be brought on the table, it is never going to be enough for the society, because the society is always in a transitional phase. Society हर दिन grow कर रहा है. हर दिन क्या हर दिन law बदल सकता है? नहीं बदल सकता. So that is what I'm trying to say, that you have to make yourself personally aware so much that you can protect your own data. I mean, मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार मैंने एग्जांपल्स दिया है कि कई बार आपके पास स्कैमर्स का कॉल आता है, या स्कैमर्स के मैसेजेस आते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस स्पेस पे होते हो जहां पे आपको लगता है कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ.
ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ये डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये अवेयरनेस, ये नॉलेज, ये सब कुछ प्रोक्योर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यू कैन नॉट कंप्लीटली ब्लेम द गवर्नमेंट, यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन योरसेल्फ. It is a mutual process that we have to follow. I hope I've justified. Can I move on? All right. Yes, yes. Yeah, thank you so much. So पहला जो हमारा राइट टू प्राइवेसी का जो ग्राउंड वर्क था वो सबसे पहले एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ले डाउन कर दिया गया। इससे पता चला हम सबको कि भैया ये हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमें मिलना चाहिए। लेकिन बीच में आ गया हमारे ये टेक्नोलॉजिकल एरा। ये जो टेक्नोलॉजिकल एरा आया उससे आया आईटी लॉ, उससे उसके अलावा और भी सारे डेवलपमेंट्स चलते चले आए। लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो था हमारा पुत्तस्वामी जजमेंट, यानी कि केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट है, एक वाटरशेड मोमेंट फॉर प्राइवेसी राइट्स इन इंडिया। सो कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जजमेंट, ये जो जजमेंट था हम सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसने हमारे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को बहुत ही ज्यादा क्रिस्टलाइज कर दिया। हमें एक राइट ऐसा मिल गया जो कि हम क्लेम कर सकते हैं, जो कि हम लोग एक अनवारंटेड स्टेट इंट्रूजन से बचा सकते हैं अपने आप को। तो पुत्तस्वामी जजमेंट not only helped us realize our personal autonomy, but it also crystallized or catalyzed the legislative discourse. Catalyze the legislative discourse कहने का मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव हमारे यहाँ पे कैसे काम करता है, कितना टाइम लगाता है, हम सबको पता है। जुडिशरी जब भी कोई जजमेंट पास करती है उससे इंस्पायर होकर एक डायरेक्शन होता है लेजिस्लेचर के लिए कि हमारे सोसाइटी में ऐसे लॉ की कमी है, तो उस तरफ वो एफर्ट लगाना लेजिस्लेचर का फिर काम होता है। नाउ ये हमारा अब अभी अगर आपको पता होगा कि 2021 का एक डेटा प्रोटेक्शन बिल भी है जो कि अब क्रिस्टलाइज हो चुका है ऑलरेडी। नाउ जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो बेसिकली करता क्या है? ये हमारा जो प्राइवेसी कंसर्न है वो उस चीज को एड्रेस करता है। हमारा एक पर्सनल डेटा को सेफगार्ड करने का एक मैकेनिज्म स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द जजमेंट is not only a judgment which is for us, it is also a direction given to the government policies and practices कि आप जो डेटा कलेक्शन कर रहे हो या सर्विलांस कर रहे हो, it has to be in consonance with the personal autonomy, और अगर ये लीक हो गया तो it will create a havoc in the society। बहुत सारे लोग अपना हार्ड अर्न मनी लूज करेंगे, आइडेंटिटी लूज करेंगे, क्योंकि हमारे अभी जैसे कि मैंने कहा कि I don't know where this AI is going to stop. This artificial intelligence and the technological advancement that we are talking about has a high potential to violate our privacy. So we need to understand what could be our scrutiny, what could be the safeguards to protect everything that we are talking about. So दो चीजें हैं, हमें हमारा पर्सनल ऑटोनॉमी भी चाहिए और सरकार को सर्वेलेंस भी चाहिए। तो पुत्तस्वामी जजमेंट जो था वो हम इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा एम्पावर कर दिया कि गवर्नमेंट सर्वेलेंस की जो प्रैक्टिसेस है उसको चैलेंज करने का राइट मिल गया हमें, जो कि सिर्फ हमें नहीं, अब जुडिशरी भी विल आल्सो टेक इनटू कंसीडरेशन कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट, व्हाई गवर्नमेंट इज टेकिंग सो मच ऑफ सर्वेलेंस। सो ये जो हमारा जो जजमेंट है वो आईटी एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। क्यों? क्योंकि वो एडिक्वेट नहीं था, वो इनफ नहीं था हमारे डेटा कलेक्शन और सर्वेलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा डिबेट क्या है? We might be able to control everything, but how are we going to control the social media regulations? आज सोशल मीडिया में जो हम लोग we put everything in social media, everybody is so desperate to bring their life on social media. Is it, I mean, are we talking about we are talking about privacy, yet there are many people who are putting their privacy online. So this is not only a challenge, the balancing the need for content moderation with the right to free speech and privacy. हमारे पास फ्री स्पीच भी है भैया कि हम चाहे जितना पोस्ट करें, आपको क्या मतलब है, बट हमारे पास एक प्राइवेसी भी है, हमारे पास प्राइवेसी अपने डिफरेंट मोड्स पे आता है। तो ये जो हमारा रीसेंट डिबेट है, सबसे बड़ा रीसेंट डिबेट इसी चीज का है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डेटा कलेक्शन का जो प्रैक्टिस है या मॉडरेशन पॉलिसीज जो है वो हम लोग कैसे कंट्रोल करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। आजकल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है
कौन यूज कर रहा है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कर रही है या फिर प्राइवेट एंटिटीज भी यूज कर रही है? प्राइवेट एंटिटीज नॉट नोन, हो सकता है कि आई एम सो गुड विद द कंप्यूटर, आई एम सो गुड विद द विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दैट with the technology कि I can take your data, I can take your personality, I can impersonate you and I can get everything out of it. So we have a potential misuse, mass surveillance, discriminatory applications. So the concerns regarding the lack of robust regulatory frameworks and potential for profiling individual remain prominent. So we need to understand facial recognition technology is another threat as well as a boon for us. Somebody has a question. Yeah, ma'am, I have one question that Indian government has bought a surveillance equipment from Israel that is called Pegasus spyware. So through Pegasus spyware, they are surveillance and they are encroaching the right to privacy. So these Pegasus users While you are, I'm sorry, while you are asking a question, be specific about it. Like if it is breaching what? Let's take an example and then we can discuss the problem. No, I just want to attach this question with the Puttaswamy judgment. That's why I'm telling you that that can be challenged. That Pegasus software the government are using, that can be challenged along with the Puttaswamy judgment. No, so why is being the spyware? So let everybody be made aware of what we are talking about. We are talking about Pegasus. What is Pegasus? Pegasus is a spyware जो कि इजरायली साइबर आर्म्स कंपनी बनाता है, ठीक है? और उसको क्यों डिजाइन किया गया है? इट इज रिमोटली इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल फोन्स, जो कि हमारे एंड्रॉइड पे भी चल सकता है. तो ये बेसिकली इसका पर्पस है टू फाइट क्राइम एंड टेररिज्म. So the governments around the world have extensively used the spyware to have surveillance journalists, lawyers, political dissidents और human rights activists. ये हमारा पर्पस है, ठीक है, Pegasus का. So Pegasus, now it is totally dependent on the utilization of it. See, we are not talking about the technology, we are talking about the extent of encroachment. The extent of encroachment must be to that extent that you're not breaching my private life. Please understand that it is the job of the government to protect, to have a surveillance. Why surveillance? In order to protect crime and terrorism. And not only terrorism at one place, but why are we talking about the state? Why is state purchasing that kind of technology? We have fundamental rights. Against whom do we enforce our rights? We enforce our fundamental rights against the state. स्टेट का काम है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना. स्टेट क्या कर रहा है? कोई भी क्राइम कमिट ना हो, उसकी वजह से हम लोग स्पाईवेयर खरीद रहे हैं या फिर दूसरा टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं. रही बात चैलेंज करने की, ऑफ कोर्स इफ इट इज एनक्रोचिंग इट बियॉन्ड द लाइन, it can be challenged. Why only Puttaswamy? You can raise another case, raise the issue that it is encroaching in our private life. There is a violation of a fundamental right. You can always raise it. But the biggest problem is there is no clear demarcation. Demarcation of what? Demarcation की state किस extent तक interfere कर सकती है. So as long as the state is able to prove that this is only for in order to prevent cyber terrorism or terrorism or anything of similar nature, they can justify it. But you will, on the other hand, to prove that it is encroaching the private life of a person or it is violating the fundamental right called as right to privacy. All right? Right. Okay. All right. Thank you so much. So we were talking about the contemporary challenges to privacy. So we have already discussed about social media and facial recognition. We are now going to talk about the data breaches. Is anybody aware what is a data breach? किसी को पता है data breach किसको कहते हैं? Data breaches are when a particular person or when a particular attacker has sent a spyware. Stealing of data. Sorry?
Stealing of data. Very simple. Stealing of a data, right? So stealing of a data, how come? It is being done online. ठीक है. साइबर अटैक जैसे हमारे यहाँ मतलब सबके ऑलमोस्ट सबके साथ नहीं, अगर सबके साथ तो किसी ने तो सुना ही होगा कि फेसबुक पे लिंक भेजे जा रहे हैं या इंस्टाग्राम पे आपको लिंक भेजता है कोई आपके जान पहचान का, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है. यू ओपन इट, देन यू रियलाइज दैट योर इंस्टाग्राम हैज बीन हैक्ड. फिर वहां से डेटा ब्रीच कर लिया जाता है या डेटा ले लिया जाता है. या ये पुराने भी कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं. So we also need to have a robust data protection mechanism जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रोवाइज करे और हमारे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करे. हमारे साथ नहीं तो कई लोगों के जान पहचान में तो ऐसा हुआ ही होगा, जहां पे अगर सपोज आपके पास कॉल है. सॉरी, एक एग्जांपल देता हूँ. रश्मिका मंदाना एंड कजोल. राइट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड, वंडरफुल एग्जांपल. रश्मिका मंदाना का फोटो शॉप हुआ था, उसको क्या कहते हैं, फोटोमॉर्फिंग, राइट? द करेक्ट टर्म इज फोटोमॉर्फ्ड. ठीक है. उसमें क्या होता है कि आपने किसी का उसका फेस लेकर के किसी दूसरे के बॉडी में उसको मॉर्फ कर दिया है. ठीक है. इससे डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द वायलेशंस जहां पे आपको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा ब्रीच. फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कॉल किया और आपने कहा कि आपके पापा ने कहा है आपको 10,000 रुपए देने के लिए. क्या आप चेक कर सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे 10,000 का मैसेज आया कि नहीं आया? आप कॉल पर हैं, आपने व्हाट्सएप चेक किया, आपने देखा 15,000 का मैसेज है. लेकिन मैसेज में और अमाउंट में फर्क होता है. आप जितना अवेयर होंगे इस चीज से, आप उतना रियलाइज कर पाएंगे. आपने 15,000, तो वो आदमी फोन पर है, उसने कहा कि अरे भैया मैंने तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया, आप मुझे वापस कर दो. जब आपको पता चलेगा कि 15,000 रुपए अकाउंट में नहीं आए, 15,000 रुपए मैसेज में आए हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि ओ नो, दिस इज एन अटेम्प्ट वेयर आई एम बीइंग फूल्ड, दिस इज अ स्कैम. अपार्ट फ्रॉम दैट, डेटा ब्रीच और किसको कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी और किसको कहते हैं, जैसे कि आपके आधार के इंफॉर्मेशन से आपके बाकी के सारे इंफॉर्मेशन निकालना, सिक्योर करना, इज व्हाट इज साइबर अटैकिंग और साइबर डेटा ब्रीच. ऑलराइट. So this is the different nuances of the right to privacy in India. We have different important cases. What are these important cases? जो कि मैंने पहले बताया, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 का केस है. उससे अटैच दूसरा इंपॉर्टेंट केस है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 का केस है. और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि टर्निंग पॉइंट था, केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2017 का केस है. उसके बाद हमारा आधार केस भी है जो कि केस पुत्तस्वामी का ही पार्ट है. उसके बाद राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें यह बताया गया कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्हिच इज गिवन अंडर आर्टिकल 21. और वी हैव गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी जो कि 1975 का केस है, उसमें भी इस चीज को स्टैब्लिश किया गया कि राइट टू प्राइवेसी एक हमारा पार्ट है फंडामेंटल राइट चैप्टर का. ठीक है. और if anybody is interested in taking all the case laws, I would request Kashif sir to provide them the materials that I've shared earlier, where it includes all the case laws. All right. Definitely. So, I will. if anybody is interested in taking the case laws, please provide them the PPT. All right. Okay. So moving on to the second right, the right to work. Again, a very fundamental pillar of a social justice and economic empowerment. क्यों है ये? क्योंकि हमारे पास in order to secure our livelihood, dignity and self-sufficiency, हमें क्या चाहिए? राइट टू वर्क चाहिए. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सेपरेटली नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन यू विल फाइंड इट अंडर आर्टिकल 41, आई बिलीव. अंडर Article 41, the constitutional ethos of India are embedded, जिससे पता चलता है कि हमारे पास right to work है और ये state की responsibility है to create an enabling environment for employment generation and ensure social security for all citizens, for all individuals. So इसीलिए I'm very proud and bold enough to admit that whenever you are selecting or electing your government, it is not only about the other factors, but it is your fundamental right. You have every right to claim for the government to create opportunities for the citizens. So, and in the democracy that we are living in,
has given us every right to question. Question whom? To question those people whom we have elected and they are in power, because they have taken responsibility to create an enabling environment for all the employment generation and for us to ensure social security. So over the decades, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक में हमारा एक लेजिस्लेटिव जर्नी रहा है. लेबर राइट्स को हम लोगों ने चढ़ते और उतरते देखा है. कैसे? पहले तो सबसे पहले हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं. तो वहां से कई चीजें आई, हमारे कंट्री में आई, क्योंकि जब इंडिया जब आजाद हुआ और हमारे यहाँ जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को बनाया गया, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी डिफरेंट लॉज की. कैसे लॉज की? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. मिनिमम वेजेस एक्ट है क्या? जो कि ये इंश्योर करता है कि एक इंसान का मिनिमम, एक लेबर का मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होगा, मिनिमम वेजेस क्या होगा. हमारे पास इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, हमारे पास पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, हमारे पास उससे रिलेटेड कॉम्पेंसेशन एक्ट है, हमारे पास उससे रिलेटेड मटर्निटी एक्ट है. ये सारे लॉज क्यों हैं? ये लॉज इसलिए हैं क्योंकि दे हैव प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल in not only setting a wage standard but also providing employment opportunities, addressing poverty in rural areas. So ये एक बहुत ही commendable effort लिया गया आजाद भारत में, जहां पे ये बताया गया कि हमारे पास ये challenges है और ये laws हैं उसको mitigate करने के लिए. ठीक है? So the constitutional mandate regarding the right to work is not specifically articulated in specific provision, but it can be implied through Article 21 and 41 of the Constitution. हमारे पास कहीं नहीं लिखा है right to work in India is a fundamental right, but we can again, it is a judicial interpretation given by different judicial decisions under Article 21 and 41 of the Constitution. कैसे? Article 21 में कैसे? Article 21 कहता है right to life and personal liberty. Personal liberty, right to life आप कैसे लीड कर सकते हैं? Unless and until you have a right to work. आपके पास right to work नहीं होगा, अगर आपको काम नहीं दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है, तो हाउ विल यू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ? So we should have a right to employment and livelihood. So the judiciary has recognized that right to life encompasses the right to livelihood, which inherently includes right to work. Talking about Article 41. Article 41 is a part of directive principles of state policy. Can anybody tell me what is the relevance of directive principles of state policy? Anybody? Relevance means? क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों है हमारे संविधान में? डीपीएसपी वो तो इन्फोर्सेबल नहीं है, फिर भी हमारे संविधान में क्यों है? Welfare of the society. Sorry? It's for welfare of the people. Welfare of the people. Whose responsibility is it? States. It is the states. Exactly. State directive principle. Directive का मतलब ये स्टेट की तरफ एक डायरेक्शन है, उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपको अपने स्टेट्स को इस तरीके का बनाना है. ठीक? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिर्फ आप अगर देखें आर्टिकल 41 को अगर रीड किया जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो पार्ट है आर्टिकल 41, ये बताता है कि स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of underserved want. Now you need to understand कि हमारा जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगा, हमारा जो भी स्टेट होगा, उसको विद इन इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी. दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर, दिस इज व्हाट वी आर क्लेमिंग अगेंस्ट. ऑलराइट, सो सरकार का काम या स्टेट का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो आपको सिर्फ लाइवलीहुड प्रोवाइड करे, बट ऑल्सो राइट टू एम्प्लॉयमेंट. आप अगर ओल्ड एज हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, बीमारी का मतलब यू विल हैव टू हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ regulations whereby people are given treatment at a very low cost. So now you understand together Articles 21 and 41 is implying a constitutional obligation on the state to create an environment conducive to employment opportunities. ये एक ऐसा environment create करे जो कि employment opportunities create करे और social security ensure करे हमारे citizens के लिए. So while Article 21 establishes the right to life and personal liberty, साथ ही साथ which is also including the right to livelihood and work, Article 41 emphasizes
the state's responsibility to make provisions for securing the right to work and providing social assistance to those in need. ठीक है. Now, what are the legislative initiatives? अब ये हमारा लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव इसको लेकर के क्या है, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की, मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि ये सेट करता है कि मिनिमम वेजेस अक्रॉस द कंट्री वेरियस सेक्टर्स क्या डिसेंट स्टैंड. अब जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, मैं आपको मोटा मोटी बता के चलूं कि वो है क्या. मिनिमम वेजेस एक्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरह का इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, जैसे स्मॉल सेक्टर्स या बिग सेक्टर्स जिसमें कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स फिक्स किया हुआ है. वहां नेचर ऑफ द वर्क पर डिपेंड करता है कि एक मिनिमम वेजेस कितना होगा एक इंसान का. तो सिर्फ ये एक फैक्टर पर नहीं डिपेंड करते, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहला, उस जगह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, रॉ रिसोर्सेज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट इज द कैलोरी इनटेक. So taking into the consideration all these factors and the demography of the country and the state, the minimum wages are being fixed by the Indian Labour Commission, which is also at the different state level. ठीक है. Now, ये मिनिमम वेजेस क्यों फिक्स किया गया है, ताकि हर इंसान जो काम कर रहा है उसका जो कैपिटलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसका मिसयूज ना करे. उनको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं उसके थ्रू उसका मिसयूज ना किया जाए. पहले कैसे होता था, जब हमारे पास ये सारे लॉज नहीं थे, तो हमारा जो कैपिटलिस्ट मार्क्सिस्ट की थ्योरी सबने पढ़ी है, उसमें क्या था, दो क्लासेस थी, वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास. जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो दिन ब दिन अमीर होता चला गया, और जो वर्किंग क्लास था वो दिन ब दिन गरीब होता चला गया. कैसे? उनको पॉपुलेशन ज्यादा थी, काम कम था, और काम की जरूरत सबको थी, तो लो कॉस्ट पे भी लोग काम करने के लिए राजी हो जाते थे. उसकी वजह से यहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस हुआ, जहाँ पे कुछ लेजिस्लेटिव मैंडेट्स बनाए गए, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बताता है. उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसके अलावा मैटरनिटी एक्ट है, और इसके अलावा एक और है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को क्लेम करता है कि वो एड्रेस करता है. और ये जो प्रोग्राम है उसका एम क्या है, टू प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट फॉर रूरल कम्युनिटीज, इंश्योरिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. कैसे? बाय ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली लिंक टू लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है. बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इन सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स का? सबसे बड़ा चैलेंज है इनका इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. कैसे इनके इम्प्लीमेंटेशन में? सो first of all, we need to understand many individuals still struggle to find employment that offers fair wages. आपने आज की स्थिति देखी होगी कि लोग पीएचडी करके भी लेबर वाले काम करने के लिए तैयार हैं. क्यों? क्योंकि हमारे देश में नौकरियां नहीं है. सो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, and the state is not able to create that kind of employment opportunities in this country, so it has become really difficult for the implementation of these legislative mandates. Gender disparities in workforce. पहले का सिचुएशन सबको पता है कि women used to face persistent challenges in accessing quality employment opportunities. एजुकेशन भी. ठीक है. पहले एक तरह का काम करने के बावजूद दोनों में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं हुआ करता था. लेकिन now the women are coming forward, they have been getting education, और अब जो है वेज डिस्क्रिमिनेशन पहले के मुकाबले कम हो गया है. तो जेंडर डिस्पैरिटीज इन द डिफरेंट वर्कफोर्स हैज बीन अ बिगेस्ट चैलेंज. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो हमारा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज सोसाइटी है, give me 1 minute. Huh?
All right. So we were talking about marginalized communities and formal employment. So इसमें हमारा कुछ ethnic minorities भी आ जाते हैं, economically disadvantaged groups भी आ जाते हैं, जिनको कई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट्स में बहुत तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी भी है हमारा, कि अगर एक बंदा एक डिसेंट वर्क अगर नहीं अक्वायर कर पाता है, तो वो पॉवर्टी की जो लाइन है ना, वो चलती चली जाती है। एंड दिस हैपेंस इन मेनी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. So without meaningful employment opportunities, individuals and communities struggle to break free from a systemic barrier. इस सोसाइटी में एक सिस्टमिक बैरियर है। क्या ऐसे सिस्टमिक बैरियर्स है? अगर किसी एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी फैमिली को नहीं मिल पाता है प्रॉपर जॉब, तो आपके क्या होता है कि वो सेम साइकिल में घूमता चला जाता है। ठीक है, वी डू नॉट हैव एडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शंस आल्सो, जो कि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी लॉ या जो हमारा लीगल सेटअप है वो कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकता, कोई ना कोई कमी उसमें जरूर होगी, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होगा, कहीं ना कहीं अब्यूज होगा। सो अब हम लोग कोशिश करते हैं, बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट वी आर स्ट्रेंथनिंग द लेबर लॉज एंड एनहांसिंग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट केस लॉज हैं, जैसे कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का, जो कि बात करता है बॉन्डेड लेबर्स के राइट्स की और चिल्ड्रन के राइट्स की। ठीक है, कि क्योंकि हमारे कंट्री में बॉन्डेड लेबर अब बैन कर दिया गया है, अब नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम इन द सोसाइटी इट इज हैपनिंग लाइक एनीथिंग। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि एक बहुत ही सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स पे के साथ होता है। Coming to the third very important right of our life, that is the right to education. Right to education है क्या, क्यों है? राइट टू एजुकेशन हमारे कंट्री में आया कहाँ से, कोई बताएगा मुझे? Ma'am, it was in fundamental right. Now it has become. It was in DPSP. Now it has become fundamental right. Why? The question is why? Why it has come to a fundamental right? The reason why we have incorporated it as a fundamental right in 2005 is because we are signatory members of many international conventions like CRC. So and we are a part of many international and regional treaties, which has compelled us to incorporate the right to education as a fundamental principle through the various international treaties and different national constitutions. ठीक है, what exactly is right to education? Right to education बहुत सबको समझ में आता है कि it recognizes education as a basic human right, which is essential for the overall development and empowerment of individuals, societies, and nations. अगर आज के बच्चे को आप अगर एजुकेशन नहीं देंगे, तो कल का सोसाइटी हमारा उतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होगा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं।
So the right to education encompasses the guarantee of access to quality schooling. क्या है राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? कि आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे आप अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप सिंगल पेरेंटिंग है या दोनों पेरेंट्स हैं, या आपका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट टू एजुकेशन का जो रूट्स है वो आर्टिकल 21A में आता है, विच इज ऑल्सो अ मैंडेट फॉर द स्टेट। अब आप सबको पता होगा कि द स्टेट इज सपोज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एजेस, क्या के एज के बिटवीन होता है, 2 एजेस के बीच में ये होता है। कितने से कितने साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है इंडिया में? 6 to 14. Very good, very nice. So we have compulsory education to all the children between the ages of 6 to 14. So this constitutional provision reflects India's commitment to fostering an inclusive and equitable education system. हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी to acquire knowledge, skill and values which is necessary. किस चीज के लिए? For the active participation of the society. एक इंसान को अच्छा काबिल इंसान, उसको उनका वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू एजुकेशन का जो जर्नी रहा है वो एक बहुत अहम मुद्दा रहा है हमारे देश के लिए, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉर्मलाइज कर दिया गया। पहले वो डीपीएसपी का पार्ट था, अब उसको फंडामेंटल राइट का पार्ट बना दिया गया। आरटीई जो है हमारा राइट टू एजुकेशन, इसका बेसिकली इंपॉर्टेंस क्यों है इतना ज्यादा, क्या हमारा पर्पस रहा है? सबसे बड़ा इसका जो पर्पस रहा है हमारा वो ये रहा है कि आज के बच्चे जो हैं वो हजार्डस, उनका कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ना हो या वो किसी ज्यादा खतरनाक जगह पे काम ना करें, और काम करने के बजाय वो अपना बचपन जिए और अपना एजुकेशन एक्वायर करें। क्योंकि कहते हैं ना, यंग माइंड्स आर द पूल ऑफ फ्यूचर, पूल ऑफ यंग माइंड्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, एक करके एक सेइंग है जो कि हम लोग सबने स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं और एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को क्रिएट कर रहे हैं कि हर इंसान पढ़ा लिखा हो, इतना पढ़ा लिखा हो कि आप पॉवर्टी को इराडिकेट कर सके, और एक जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज हैं, उनको अपब्रिंग करें, उनको एम्पावर करें। एंड not only this, by guaranteeing the right to education, the government is committing to invest human capital, then nurturing the future leaders and creating opportunities for individual growth and collective prosperity. So article 45 कोई मुझे बता सकता है क्या है? Article 45 of the constitution बताता है स्टेट का कमिटमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 years. So ये जो है, this directive principle reflect the constitutional recognition of education as a fundamental right, which is essential for the holistic development of individuals and the nation. ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं है, ये देश के फ्यूचर को बनाने का पर्सपेक्टिव है। So by emphasizing the importance of education, Article 45 underscores the state's obligation to create conditions conducive to learning. आप सिर्फ और सिर्फ राइट लिख देना काफी नहीं होता है, आपको इस तरह की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। सॉरी। सो आप चाहे किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, यू वुड बी एबल टू अफोर्ड द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू। ठीक है, नाउ हाँ प्लीज, इफ एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन प्लीज straight away unmute yourself, पूछिए। Yeah, Nadia, please ask. Arzu, you want to ask any question? अरूज, आरजू या अरूज, शहबाज, आप जो भी हैं, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। Okay, ma'am, you can continue. I think sometime by mistake they raise their hand. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंडमार्क लेजिस्लेशन राइट टू एजुकेशन 2009। इसका मकसद क्या था कि आप जो है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को आप
कैसे इंस्पायर करते हैं बच्चों। कई कई जगह पे कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत गरीब होती हैं, बहुत ज्यादा गरीब होती है, जिसकी वजह से जितने भी घर के बच्चे होते हैं वो सब काम कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार सरकार ने उनको मोटिवेट कैसे किया, उनको मोटिवेट किया मिड डे मील दे करके, किताबें दे करके, दूसरे तरह के एमिनिटीज दे करके, जिसकी वजह से बच्चे आए और पढ़ें। लेकिन अब हमारे कंट्री में ये जो वर्ड्स जिसकी बातें हम कर रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, वो कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या है? प्रैक्टिस में हमारे सरकार ने जितने भी स्कूल बनाई हैं, पहले जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे उसमें बहुत क्वालिटी एजुकेशन पहले मिलता था। पहले, अब चाहे ये कैसे भी बच्चे हों, कितने भी गरीब हों, और चाहे स्कूल कैसा भी हो, उसमें कुछ टीचर हुआ करते थे, उसमें जाते थे, पढ़ाते थे। बच्चे यहाँ से अपने बोरे लेके जा रहे हैं, पहले क्लासरूम का झाड़ू लगा रहे हैं बच्चे, फिर साफ सफाई हो रही है, फिर पढ़ने बैठ रहे हैं। उन सब में सबसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें रियलाइज करनी चाहिए, कि सारे प्रिंसिपल्स के साथ कम से कम बच्चा पढ़ रहा था, चाहे वो खाने के बहाने आए या दूसरे किसी बहाने से आए, लेकिन बच्चा पढ़ रहा था। बट द करेंट सिनेरियो इज नॉट एज गुड एज इट वाज अर्लियर। पहले द सरकारी स्कूल यूज्ड टू बी रियली गुड, लेकिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नाउ पीपल स्टैंडर्ड इज गेटिंग रेज्ड, और हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है प्राइवेट स्कूल में। नहीं भी अफोर्ड कर पा रहा है तो प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन अब धीरे धीरे डिटेरिएट होते जा रहा है, बट नोबडी इज क्वेश्चनिंग अबाउट इट। सो well, that is not my perspective. So RTE जो है, राइट टू एजुकेशन, हमारा क्या इन्विजन करता है कि वी मेक अ फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट, वी प्रमोट चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी कि जो स्कूल में पढ़ाई होता है उनका जो तरीका होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि हर बच्चा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो और आए। बट हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, जो कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड एजुकेटर्स हैं। अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग मूवीज या सीरीज देखते हैं, बट मैंने बहुत सारी मूवीज और सीरीज ऐसे देखी हैं जहाँ पे टीचर घर में, मतलब स्कूल में काम कर रही है, घर से सब्जी लेके जा रही है, वहीं पे बैठ के सब्जी छिल रही है, काट रही है, घर जाके बना रही है। तो हमारा, दिस इज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द करंट सिनेरियो, जहाँ पे क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स आर लैकिंग, और अगर है भी तो आर दे गोइंग टू द स्कूल्स? So the quality, the teaching quality is being compromised, due to which there is very limited student engagement. So apart from that, different economic disparities, economic inequality जो है हमारे बीच में, there is unequal access to quality education. हम कितना भी कह दें कि 6 से 14 साल को बच्चों को जबरदस्ती हम एजुकेशन देंगे, लेकिन क्या आप माँ बाप के खिलाफ जाके एजुकेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अब वो इतनी गरीबी में है कि बच्चा चाय की दुकान पे काम कर रहा है, क्या आप उससे ऊपर उठा सकते हैं? आप जबरदस्ती कहीं नहीं कर सकते हैं। हमारे ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई निकल के चैलेंज नहीं करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट भी उसी तरीके से डेवलप किया गया है। एंड यू विल सी, आई मीन आई एम वेरी सरप्राइज टू सी अ lot of beggars and lot of families, they have a lot of children. If you cannot afford, how can you have so much of children? So I mean, earlier I used to get so infuriated कि भैया इतने बच्चे क्यों लेकर के आ रहे हो जब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना उनका एजुकेशन, ना खाना पीना। बट अगेन दिस इज अ माइंडसेट, बच्चे जितने होंगे उतना भीख मांगेंगे और उतना कमाई करके लेकर के आएंगे। तो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस हमारे जो राइट टू एजुकेशन को एनफोर्स करने के लिए। दूसरा, जेंडर बायस, हम सब जानते हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ये होते हुए या खुद के साथ होते हुए देखा है। दैट इज जेंडर बायस, deep rooted gender bias and societal norms is perpetuating the disparities. पहले सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उसकी वजह से एक बहुत वाइड गैप आया एजुकेशन में कि सिर्फ लड़कों को एजुकेशन मिला और लड़कियों को बहुत कम एजुकेशन मिला। Now the situation is improvising at such an amazing rate. I'll give an example. My brother is in IIM Odisha and they are having 180 capacity, 180 की कैपेसिटी है क्लास की, उसमें से 113 लड़कियां हैं। सो वी हैव ओवरकम दिस चैलेंज। सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू कैन सी a lot of girls coming and taking education, and it is so affordable also.
So this gender, now the parents that we are talking about, I mean institution के ऊपर parents का trust बहुत ज़्यादा depend करता है. For example, I mean, I come from a family which was very adamant to get education. मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं था भैया कि हम लड़की हैं तो हम मुझे education नहीं मिलेगा. लेकिन at the same time there have been a lot of girls who have faced a discrimination. उनको quality education का मौका ही नहीं मिला. So what exactly are we fighting for? We are fighting against. हो सकता है कि पहले 100% हुआ करता था, लेकिन we have come to that stage जहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत हद तक, बहुत एक्सटेंट तक डील किया जा चुका है. दूसरे कल्चरल बैरियर, कई बार कल्चरल बिलीफ और प्रैक्टिसेस की वजह से कई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डिस्करेज किया गया. अब मैं आपको बताती हूँ बिहार के बहुत सारे इंसिडेंट्स या उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इंसिडेंट. बिजनेस है, पापा ने बिजनेस बना दिया, बच्चा पढ़ेगा नहीं या पढ़ नहीं रहा. क्यों? क्योंकि पापा का ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप है ना. पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता. पढ़ने का मकसद होता है एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना सोसाइटी के लिए जहाँ पे वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. लेकिन ये कई बार ऐसा होता है कि दूसरे तरीके से इसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटेड एक्सेस इन रूरल एरियाज. हमारा कंट्री 70% एग्रेरियन सोसाइटी है जहाँ पे बहुत दूर दूर तक एजुकेशन, आई मीन स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है. तो वहाँ वैसे केसेस में भी हमारी इस फैक्टर की वजह से भी राइट टू एजुकेशन को सही से एनफोर्स नहीं किया जा पा रहा है. दूसरा, आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है, क्या अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. 10 रुपया महीने का फीस है, वो अभी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, या पेरेंट्स नहीं देना चाहते, उनको नहीं लगता कि ये एडेक्वेट है, ये जरूरी है. So socio-economic factors such as poverty, child labor, inadequate nutrition can negatively impact children's ability to attend school regularly, which is now affecting the overall academic performance and educational outcomes. So right to education से related हमारे कुछ केस लॉस हैं, जैसे कि अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 का केस है, जिसमें बताया गया था कि राइट टू एजुकेशन सिर्फ राइट टू एजुकेशन कहने के लिए नहीं, इट हैज the government has to provide right to safe learning environment in the schools. So you will have to put a certain safety standard. अगर लड़कियां जा रही हैं तो you have to provide certain safety standard. अगर अभी बहुत सारे आपने देखा होगा, I'm not sure how many of you have heard about every building has to be disabled friendly building. Every building has to be have fire safety standards. क्यों? ताकि आप safe environment create करें. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. ये सबको पता होगा. ये मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो केस है, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार पढ़ा होगा, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है. क्या, किस लिए? कि जो हमारा जो एजुकेशनल पॉलिसी है या प्रैक्टिसेस है कर्नाटका में, वो कुछ ही पर्टिकुलर सेक्शन को मिल रहा है, दूसरे सेक्शन को नहीं मिल रहा है. तो उस टाइम पे ये बताया गया मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, राइट टू एजुकेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एजुकेशन लेना, या फिर क्योंकि हमारे रिलीजियस स्कॉलर ने बहुत पहले दारुल उलूम देवबंद आप देखेंगे या बहुत से मदरसे ऐसे बनाए हैं जहां गरीब बच्चे बिना डिस्क्रिमिनेशन के पढ़ते हैं और उनको फूड भी दिया जाता है, शेल्टर भी दिया जाता है, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको एजुकेशन दिया जाता है और काफ़ी अच्छी डिसिप्लिन एक लड़के निकलते हैं वहाँ से. तो ये तो मदरसे में जो तालीम दी जाती है, मदरसे में जो एजुकेशन दिया जाता है, क्या ये इस सरकमफ्रेंस में नहीं आता है जो सरकार 2009 में जागी है, जो कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर बहुत पहले जाग चुके थे कि हमारे गरीब बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से. ये तो जरूरी नहीं है कि उनको अब तो बहुत सारे मदरसे में कंप्यूटर क्लासेस और इंग्लिश क्लासेस वगैरह भी चालू है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे पता है कि ये कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जाएगा. तो मैं आपको बता दूं कि मदरसे में जो एजुकेशन है वो भी एक एजुकेशन का पार्ट, और हमारे पास पूरा राइट है कल्चरल एजुकेशन एक्वायर करने का, प्रोक्योर करने का. और अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं, अभी हमारे कंट्री का जो स्टेटस है बिकॉज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट और बिकॉज ऑफ द करंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट, मदरसे का जो एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा सब्सिडाइज, आई मीन अंडरमाइन किया गया है, बहुत ज्यादा इरेलेवेंट बताया गया है. लेकिन वी हैव एवरी राइट टू get that kind of education because it is our freedom.
दैट इज व्हाट इज राइट टू एजुकेशन। कहीं लिखा हुआ है कि आप सरकार द्वारा स्कूल बनाए गए हैं उसी में जाके पढ़ेंगे, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वहीं जाके पढ़ेंगे। कहा गया है राइट टू एजुकेशन, कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है कि आपको कौन से स्कूल में जाके पढ़ना है। तो मदरसे का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल रेलेवेंट है। अब नाउ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द करंट सिनेरियो वेयर there have been a lot of demolitions of madrasas where a lot of children were getting education. Now that is altogether a different debate. Now the state might have been demolishing all these things because they have been connecting it with the different aspects. ये कौन है जो बार बार ये मैसेज कर रहा है? वो ऐसे ही है मैम, इग्नोर कर सकते हैं आप उनको। ऑलराइट, ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. Thank you. So apart from that, we have also R.D. Upadhyay versus Union of India 2008 का केस है, जिसमें जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें एजुकेशन के लिए, उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए बजट को एलोकेट किया गया। सो इट प्रोबेबली डेल्ट विद इश्यूज रिलेटिंग टू एजुकेशन फंडिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल बजट्स। इसके अलावा भी हमारे पास देयर आर प्लेथोरा ऑफ केसेस। नाउ आई वुड लाइक टू रिलेट द इंटरनेशनल अग्रीमेंट व्हिच इज, मैंने अभी मैसेज में एक क्वेरी देखा कि मैम काइंडली कनेक्ट दीज राइट्स टू पाकिस्तान एंड आल्सो द इंटरनेशनल लेवल एंड हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड अंडरमाइंड। So we are talking about the protection, we are talking about how to protect these undermining of these rights, but for taking right to education or right to work का जो एस्पेक्ट है पाकिस्तान का जो है, उसके लिए हमें एक सेपरेट क्लास लगेगा which I can take. Kashif sir, if we can have some another session, we can specifically take a separate class for पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके, ठीक है? Yes, ma'am. It is not possible for me to incorporate everything in one lecture, right? So, moving forward, we are talking about the international framework. हम लोगों ने आखिर ये right to privacy, work, education लिया कहाँ से? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जो कि हमारा ग्राउंड वर्क ले डाउन करता है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के लिए या फिर बाकी के राइट्स के लिए। दूसरा आता है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR 1966। उसके अलावा है ICESR, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। दोनों एक कोवेनेंट है, 1966 का पार्ट है, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो इंडिया में, सॉरी नॉट इंडिया में, इंटरनेशनल स्टेज पे वी हैव इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उनका काम ही है टुवर्ड्स द लेबर कमिटमेंट, ठीक है। उसके अलावा हमारा बहुत सारा है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन कवर हो जाता है आपका द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में, ठीक है। उसके अलावा हमारे कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 आई बिलीव। इसमें क्या है कि इंडिया ने जब इसको रेटिफाई किया तो वहां पे कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन के लिए एम्फसाइज किया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट को एनफोर्स किया गया, ठीक है। नाउ okay, legislative and policy recommendation. Right. UDHR जो है 1948 में आया और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है 1950 में। तो जो भी कॉन्सेप्ट है UDHR का, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में 1950 में उसको अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन जो प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट है उस पे सिग्नेटरी शायद 1992 में हुआ है, जो अलग से ये हुआ था, नॉट रॉन्ग। तो ये जो गैप है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट का 1992 में और UDHR जो बना है 1948 में, फिर ICSR 1966 में हो रहा है, तो इतना सारा जो गैप जो है, इतना टाइम लगता है लेजिस्लेशन को समझने के लिए कि हमारे यहाँ इतना जरूरत है, इतना टाइम लग जाएगा। वंडरफुल क्वेश्चन। इंटरनेशनल हमें समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात कैसे कर रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत सारे फॉर्म्स है, कन्वेंशंस है, डिक्लेरेशंस है, कोवेनेंट्स है, डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। जब भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके उसको साइन करता है, तो हमारा जो देश है, I mean, there are two theories in international law. One is monoism and the other one is dualism.
हमारी कंट्री कैसे काम करती है, वहां पे जाकर के एक रिप्रेजेंटेटिव अगर उसको रेटिफाई करके आता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर है या सिग्नेटरी मेंबर है, जो भी है, वो सरकार से वापस आकर के उसको रेटिफाई करने से पहले परमिशन लेती है। सरकार उसके बाद, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है, उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट करती है। यानी कि देयर आर 2 ways, 2 steps बाय विच वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इट। जरूरी नहीं है कि साइन करते ही ये समझ में आ जाए या ये इंश्योर हो जाए कि देश तैयार है वैसे लॉ को अपने देश में लाने के लिए। कई बार सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की वजह से कई इंटरनेशनल को एनफोर्स करने में टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, an example, UDHR का तो example is not that apt example, but the issue that you have raised is a very good one. For example, everybody, all the law students who are pursuing law in one way or the other, have heard about the case Vishaka versus State of Rajasthan. In that case, particularly, जूडिशरी ने क्या किया, हमारे कंट्री में we do not have had the law relating to sexual harassment at workplace. हमारे पास ऐसा लॉ ही नहीं था. Sexual harassment is one thing, but a separate law relating to sexual harassment at workplace नहीं. जबकि we already have signed CEDAW. CEDAW क्या है? एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. इंडिया उसका सिग्नेटरी पार्टी था. अच्छा, इंडिया में जब ये केस आया विशाखा वर्सेस स्टेट का, तो जुडिशरी ने, ऑलराइट मुबीन, आई एम राइटिंग द केस राइट नाउ. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान मेरे ख्याल से 1992 में हुआ है. राइट, ठीक है. पॉश एक्ट 2013 में आया. एग्जैक्टली. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस. सो तब उस टाइम पे जब जुडिशरी के पास कोई रास्ता नहीं था, यानी कि जुडिशरी हैज द लिबर्टी टू इनकॉर्पोरेट अ लॉ जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्ट है. सोचो, जुडिशरी हमारे यहाँ इतना एम्पावर्ड है कि अगर हमारे देश में उस तरह के लॉ नहीं अवेलेबल है तो वो इंटरनेशनल लॉ को भी इनकॉर्पोरेट कर सकती है. फॉर द टाइम बीइंग, द लॉ, दैट पर्टिकुलर केस वाज डेल्ट बाय द प्रोविजन, स्टेट विद द प्रोविजन फ्रॉम CEDAW, कन्वेंशन ऑन elimination of discrimination against women. ठीक है. Now 1 minute. ठीक है. Now we're talking about why this kind of disparity is happening between, because we are, a lot many times we do not realize that kind of research is not being done in the society. Bad that kind of also. So that kind of research is not being done in the society. Not all of a sudden when you sign an international convention can directly be brought in the country. You need to realize, the state needs to realize whether the country is ready to adopt that kind of law or not. So POSH will have come in the year 2013. Imagine, we took like how many years? 20 years, I believe, 23 years. So it's okay. I believe it depends on the cultural requirement of the country. It depends on the economic requirements of the country. Whether, if a particular country is signing an international instrument, doesn't mean that it is ready to incorporate the law. It might sign it today, but it might incorporate the law in the coming years. So there is a difference. You cannot expect a state to sign an international convention today and incorporate it tomorrow. India is having a rigid constitution and a rigid way to bring amendment. I'm not talking about the current scenario, but we have a very rigid constitution where we take a lot of time to bring certain sort of amendments in the constitution. Not only that, we take a lot of time to bring certain laws we have a rigid procedure. So that is the difference why a lot of time is being taken by the legislature to incorporate that kind of law. So first of all, we need to understand the need of the society, whether the society is ready to incorporate such kind of law. Surveys, a lot of research, and only then a law. Okay, I'm not defending government in any way. This is a disclaimer. All right. Can we move forward? Yes, ma'am. Yes. Of course, ma'am. Yeah. Thank you. So we'll move. What are the legislative and regulatory measures? We are enacting a comprehensive data protection law, and then we have to strengthen the IT law, and we have to establish a data protection authority, a regulatory body, which is lacking in this country right now.
to enforce the regulations. So this is what I was talking about. In the future, there might be another administrative agencies being set up to regulate this particular arena that we are talking about. So what are the then apart from that, what could be the challenges in implementing it? What could be the different solutions? The solutions could be to promote privacy enhancing technology. We need to, if the data, I mean, if the technology is moving that far, we need to come up with the privacy enhancing technologies. We need to make the public aware with the campaigns. Transparency and accountability is required. Uh, and the judiciary also needs to come up with a little good pace, because we have a lot of pending cases in the judiciary also. So strengthen law enforcement. And what else? We need to identify the different area. For example, in the digital area, how are we going to protect the data? How to address the disparity between the genders and work inequality. Then we have educational access. We need to make infrastructures and provide quality educations at a very subsidized rate. Then for the right to work also, you need to promote trade union right. You need to empower the civil and civil society organizations. Um, okay, so in this PPT, I've mentioned two very important case laws. Please take a note of it. Apart from that, I think in right to education, what we can do, we can focus on the quality inclusion, and we can also increase the public investment in education. We also need to bridge divide. अब हर क्लासरूम को थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना होगा. We need to target scholarships and affirmative action. We need to develop vocational training program. एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्किल दिए जाए जो कि आगे जाके आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे. ठीक है. या दैट्स ऑल. इसके अलावा जो हमारा कुछ रिकमेंडेशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो, रिसर्च डेवलपमेंट हो, collaborations हो. So this is how we are going. I mean, there are certain challenges, there are certain other things, but at the same time, I think we are gradually moving towards what exactly is needed in the society. Slowly and gradually, we will be at that position where we will be able to say that right to education or right to work or right to privacy is a most crystallized form of fundamental rights in India. If anybody have any question relating to it, please come forward, ask your question. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So this is a question and answer session. So if anybody wanted to ask any question from ma'am, please raise your hand. We will announce their name and they can ask the question. Anybody? Yes. Yeah, please. Malika, please ask. मैम मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी डेटा ब्रीच की. मैं आई Please go ahead. It would be lovely. मैम 2000 में एक लड़का था फिलिपाइन का, तो उसने एक बग बनाया था आई लव यू ईमेल वायरस था. तो वो एक अटैचमेंट आती होती थी और उससे वो डेटा स्टीलिंग करता होता था. Good, very good. नहीं, this is a wonderful example. I think अब हमें we need to get more aware that whether if, I mean, no matter where are you receiving this mail from, if you are assuring, if you are confident that this mail is harmless, then you can open, but never open a link which might come up certain situations where your data can be hacked. Yes, ma'am. Make yourself aware. Educate yourself. That's all I'm saying. Because these are the things which can, I mean, ये कभी भी कैसा भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि आपकी आवाज को कॉपी किया जा सकता है, आपके चेहरे को कॉपी किया जा सकता है, और आप इस चीज का किसी भी तरीके से मिसयूज हो सकता है. तो you need to make yourself aware. You need to make your family aware. That is important. Okay. So yeah, Advocate R.A. Fajlul. Yes, please ask. Ma'am, it is not related to today's topic. I just want your suggestion that I just wanted to do LLM, and now the field has become completely different after inventions of artificial intelligence. There is a lot many law and technology law, cyber security
and property. So means in that regard, suppose in new generation, if they want to go for LLM, particularly in technology, broad coverage of artificial intelligence and all these things. So, which kind of university in India or abroad, which where we can take? You have any idea? You can suggest us. Of course, I think a lot of universities are providing specific, you know, क्या बोलते हैं उसको, लॉ एंड टेक्नोलॉजी में इस फील्ड में प्रोवाइड करते हैं आपको, आपका स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में होता है. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक इनटू एमिटी, एमिटी में भी कई जगह पे, आई मीन एमिटीज भी कई डिफरेंट एरियाज में है, डिफरेंट स्टेट्स में है. वहाँ पे आप जो है, कैन यू म्यूट, या तो आप बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यू कैन जस्ट गूगल इट, you'll be able to find that there are many institutions where you'll find that specialization is being provided in the area of law and tech. For example, we have National Forensic Sciences also. Thank you. Forensic Sciences University, which is in Delhi. Maritime Law University. उसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे you get an education specifically in technology. Okay, so anyone else wanted to ask any question for ma'am? Space law comes also under a technology law? No, space law is a part of international public international law, which is space law and air law. It is always combined. You'll get it too. I mean, there are two wonderful places where you will get to learn space law properly. One is NUJS, that is National University of Juridical Sciences, Calcutta, and the other one is NALSAR, Hyderabad. And you have a specific institution, National Maritime Institution University, Gujarat wala, no? Okay, I believe all the query has been resolved. So if there is no question, then we can conclude the session here. And I very much thanks Hina ma'am for delivering this wonderful lecture. One last question, sir. Yes, please ask. Ma'am, I just wanted to know, because of my inquisitivity, because you are very much open and your discussion is very much open. The two things which I just wanted to know, that regarding international law, when we are studying that genetic, what you can say, means killing, genetic killing, genes killing, particular race way killing, what genocide. अच्छा, जेनोसाइड्स में दो कंट्री ने साइन नहीं किया है, इंडिया और पाकिस्तान ने. बाकी कंट्री ने साइन किया है जेनोसाइड ट्रीटी जो बनी थी उसमें. तो इसके पीछे पर्पस क्या है? इंडिया और पाकिस्तान साइन नहीं करना चाहते हैं जेनोसाइड. देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, आई एम डूइंग माय PhD in this area. I am still delving into it. There is a lot of reason behind it, because there are a lot of relevant provisions of genocide conventions जो कि हमारा स्टेट या जो दूसरा स्टेट है जो कि रेडी नहीं है इनकॉर्पोरेट करने के लिए. सिर्फ जैसे कि आपने खुद कहा कि सिर्फ इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करना काफी नहीं होता, उसको इनकॉर्पोरेट भी करना होता है. तो एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मे बी इंडिया माइट नॉट बी ready to incorporate that kind of provision. ये एक political question है. I am a law student. I can answer you what is there on the paper, but this is politics, and I don't think I will be able to answer that. Okay, thank you, ma'am. So now I think we can conclude this session here. All the question has been resolved, and I would like to thank ma'am for joining our session and requesting my